This is mu v greater than mu r, right? The A part. In W mu g, this is mu v greater than mu r. और नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा जाएगा कि सपोज W mu g पूछा, what is given? A mu g is given as 3 by 2. A mu W is given as 4 by 2. So we can write here therefore W mu g is nothing but A mu g upon A mu W. A mu g कितना हो गया? 3 by 2 upon 4 by 3. So this is 9 by 8, which is 1.12. This is the part. Similarly, they can ask G mu W, the refractive index of water with respect to glass. That is G mu W is equal to 1 upon W mu G, which is 1 upon 9 by 8 to उल्टा हो जाएगा 8 by 9. ये एक part. Then part B में you have that prism. Prism में क्या है कि this is the prism. Your monochromatic beam of light is incident. This is angle of prism A. On this monochromatic beam of light is incident. Monochromatic is single color. If this prism is not present, the path will be like this. So this is the original path. This is the dotted line. If the prism is not there, and this is your incident ray. But this is which light? Monochromatic light. Mono is single, chromatic is that. And then after this will be the white light polychromatic है ना? Yes, white is a polychromatic. Poly means many. This is refracted like this, bent toward the base. ये prism ये नहीं है, तो इसको backward direction मिलेगा. This backward direction will be your dotted line. This will be your dotted line. So the angle between these two is a deviation. Okay, this is refracted inversion. Then I will draw normal. These are the two normals drawn. These are the two normals. This is the first normal. This is the second normal. These are the normal. Okay, these are the two normals. This is angle of incidence I. This is R1. This is R2. This is angle of emergence T. Right? So this is what relation कहते हैं कि A, this angle will be delta. Relation कैसे है? A plus delta is equal to I plus E. A plus delta is equal to I plus E. So from this we conclude that there is a relation between angle of deviation on y-axis against the angle of incidence on x-axis. This is the graph of deviation on y against the angle of incidence on x-axis. The nature of graph will be like this. This is the point where your delta is delta m, where your I is equal to E. ये point रहेगा जहाँ पे delta is equal to delta m. So from this we write here when delta is equal to delta m, your I is equal to E, and refracted ray मतलब ये जो रहेगा ना QR, suppose कोई नाम दिया P, Q, R and S. This QR is parallel to base of prism. ठीक है, ये बात. तो फिर वो रिलेशन कैसे रहेगा? A plus delta M is equal to I plus R. So delta M is equal to 2I minus. There is one more relation. The delta is equal to A. This is mu minus M. From this we conclude that delta is directly proportional to A. ये हमने already किया है ना? नहीं. And delta is directly proportional to mu. But mu, yes, is inversely proportional to lambda. Delta is inversely proportional to m. So ये is lambda r greater than lambda b. ठीक है, lambda r greater than lambda b. Therefore delta b greater than delta. So अगर हम लोग white light लेते हैं, polychromatic light लेते हैं, तो it is a polychromatic में क्या होगा? 7 color split होगा. इसमें से सबसे ज्यादा deviation किसका आएगा? तो violet. सबसे कम किसका रहेगा? Red. And this is the modern relation. ठीक है? Just please go through it once. And if you want, take a screenshot.
Any problem with this, Krish? No, sir. Now next वाले में क्या है तुम्हारे पास कि A we can go with real depth and apparent depth. So A mu m is equal to real depth upon what? Apparent depth. फिर दूसरा shift is equal to real depth minus apparent depth, and shift is also equal to RD bracket में 1 minus 1 upon A mu m. These are the formulas. Right, so deviation, suppose you have a printed page where gear is written with its color, so then violet color will be raised more because uska wavelength deviation is maximum. That is one important condition. ठीक है, ये एक हो गया. Then bending of stick, person's legs appear shorter, you can see twinkling of star, right? Sun appears 2 minutes before actual sunrise, and it appears after sunset, after its actual sunset. So that is due to atmospheric refraction. Twinkling of star is also due to atmospheric refraction. These are तुम्हारे frequently asked question. Then Krish, एक चीज ध्यान रखना, when you go to CT MCQs, then ध्यान रखना कि you have to write more appropriate answer, right? So उस दिन तूने जो क्वेश्चन पूछा उसमें एनर्जी राइट है, बट किलोवाट आवर पूछा, तो दिस इज मोर एप्रोप्रिएट. यार पर वो टेक्स्ट बुक में किधर दिया है? ऐसे नहीं देंगे तुझे ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा क्रिश, ऐसे तो क्वेश्चन अलग अलग ही रहेंगे. क्या बात कर रहे वो इलेक्ट्रिक पर वैसा कुछ मेंशन थोड़ी ना किया वो किलोवाट आवर के पैरामीटर. हमने इसमें किया था ना वर्क एनर्जी पावर में, जब स्टार्ट किया था कि किलोवाट आवर को हमने लिखा था, हमारे नोट्स देख, नोट्स में लिखा है वो किलोवाट आवर, वो सब लिखा है. वो है ही वो फिक्स है, मुझे पता है, मैं पढ़ा है. वो सब चीज पे ध्यान नहीं रखते. मैंने डीएमटी नोट्स नहीं किया, मैंने टेक्स्ट बुक और आपके नोट्स जो क्लास में लिखा है ना वो किया था. उसमें भी लिखा है किलोवाट आवर, लिखा ही रहेगा कमर्शियल. ओके, ठीक है. अभी पार्ट डी में यू हैव TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. TIR में क्या होगा, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR? What are the conditions? There are two conditions. One, source of light must be in denser medium. First condition क्या है? Source must be in denser medium. First point. Second क्या है? उसी का point is, it is not second point, same point. Ray of light should go from denser to rarer. उसी point में. And third में, so the second point, your angle of incidence must be greater than IC. IC को क्या बोलते हैं हम लोग? It is critical angle. Which angle? Critical angle. Now, what is critical angle? It is the angle of incidence in denser, for which angle of refraction. तो भी ये denser medium, ये source है. Light travels straight without any deviation. So critical में क्या होता है? It will be like this, right? It will go like this. It will go like this. Refract ऐसे होगा. This is IC. This is what 90. Right? अभी क्या बोल रहा है कि इसके ये critical angle होगा. For TIR, the angle of incidence should be more than the critical. मतलब कैसे होगा? This is my incident ray, normal, refracted. ये वाला. It should be more. Incident, critical. This is I4 greater than, मतलब I greater than IC.
and this is R dash. तो ये I और वो 42 डिग्री होता है ना? ये 42, ये 42 है किसके लिए? ग्लास के लिए. So this IC, how it is related देखो, A mu m is equal to 1 upon sin I. पर TIR का एंगल 42 है ना? TIR नहीं है एंगल, इट इज क्रिटिकल एंगल. नहीं, सेकंड वाले में बोल रहा हूँ. ये क्रिटिकल है, TIR नहीं इधर, TIR यहाँ पे होगा. This is 42 जो है, IC is 42 for glass air, air के ऊपर डिपेंड होता है ना, glass air. It is 48 degree for water air, right? And it is 25 degree for किसके लिए? diamond air. ये fixed है, this is diamond, right? तो relation कैसे है कि as मतलब we can say I depends upon angle of the IC depends upon क्या आएगा? refractive index. Right? How it is related? IC is inversely proportional to mu. दूसरा IC is directly proportional to lambda, IC is directly proportional to T. दोनों के साथ वो directly proportional है, ठीक है? और just go through it ना once. सर वो एक बार वो स्टिक वाला और फिश जो ट्री को देखता है वो वाला डायग्राम एक बार. क्या कौन सा वाला डायग्राम? वो स्टिक है ना, वो रिफ्रैक्शन का. बेंडिंग ऑफ स्टिक. हाँ, बेंडिंग ऑफ स्टिक. और वो एन ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम. हाँ, तो वो क्या हुआ? डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आएगा तुमने अभी. दिस इज योर. सर तो वो उस पे डायग्राम के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. दिस इज द स्टिक ना. when it enter water, when it enter your medium, what will happen? It bend. But bending कैसे होगा? ऐसे. It appears like this. ठीक है? फिर when you are looking at a tree, so tree appears taller. मतलब ये suppose fish है. This is your water. Here it's a tree. ठीक है? तो it appears to be taller. ये जो tree का size है, ट्री का साइज जो है, it appears taller. ऐसे tall दिखेगा. एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है? यहाँ से रेज आएंगे, बट इट अपीयर्स टॉलर. इट अपीयर्स ऐसे टॉलर. सो ये जो है तो ऐसे दिखेगा. समझा? ऐसे टॉल दिखेगा. सर ऊपर वाली जो लाइन जा रही है ओ के ऊपर वाली, वो डॉटेड होगी ना? ये सब डॉटेड, ये सब डॉटेड. समझा? ऐसे. दिस इज अपीयर्स टॉल. ये बेंडिंग ऑफ स्टिक. बराबर? सर मुझे एक पेपर में डाटा वेबगर आय का पेपर था ना, ये वाला लाइट यूनिट का, उसमें क्वेश्चन नंबर 50 में क्या था क्वेश्चन? क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर. हाँ, तो कौन सा कलर होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ना. सर मेरे को आंसर रेड लग रहा है, पर करेक्शन में आपने वो वाले डाला है, मतलब तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा है ना. हाँ सर, पर अगर हम वो जब वो लाइट मतलब प्रिज्म से पास होता है और वो 7 कलर से स्प्लिट बैंड, वो बैंड ऑफ 7 कलर से ऑब्टेन होता है, सबसे कम मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिविएशन तो इसका रेड का ही होता है ना. पर मैक्सिमम होता है ना, ज्यादा वैलिड का होता है, रेड का कितना होता है? वो सॉरी मिनिमम रेड का होता है ना. तो क्रिटिकल एंगल मतलब उसका रेड ही हुआ ना. जब नहीं, क्रिटिकल एंगल एंड इधर को किधर रिफ्रैक्शन किधर मिक्स कर रहे थे?
क्रिटिकल एंगल डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, राइट? तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा, जिसका वेवलेंथ कम क्रिटिकल एंगल कम। ये रिलेशन है, तो दो मिक्स नहीं कर सकते ना। इसलिए क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल एंगल यू कांट गो विथ रिफ्रैक्शन ना, तो डेविएशन की बात चल रही है। ओके सर। हाँ, और कुछ मतलब वो सब जो क्वेश्चंस डाले मैंने वो तुम्हारे रेफरेंस के लिए, एंड डोंट थिंक कि उसमें सब आंसर्स तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे अभी हेमंत ने पूछा कि उसको ये लगता है रॉन्ग है, तो मे बी मतलब यू कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन विद मी ना। ऐसे नेसेसरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सब उनके साथ डिस्कस करो, बिकॉज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम लोग हमारे नोट्स कर रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा में सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, एंड सॉल्यूशन डाल में मिस्टेक वो स्टूडेंट का गलती नहीं है, राइट? वो क्या कर रहे हैं, सॉल्व करके तुम्हारे रेफरेंस कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, देयर मे बी सम करेक्शंस आल्सो, राइट? वो भी ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद भी करेक्शन आ जाएंगे, एंड तुम्हें लगता है कि नहीं ये सब राइट है रॉन्ग है, तुम डिस्कस करो मेरे साथ, राइट? अभी इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। टीआईआर डायग्राम कैसे पूछेंगे, चेक। The diagram will be something like this. कि suppose you have, they will give this kind of prism. सर तो अभी एमसीक्यूज के लिए बस मेन फोकस थियरी और न्यूमेरिकल पर ही है ना, मतलब थ्योरी, बट ध्यान रखना तो एमसीक्यू सॉल्व जब नहीं करोगे ना उतना तुम्हें आंसर आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा। खाली रिवाइज करके थ्योरी नहीं मतलब। मैंने फोर्स और वर्क के जो आपके दिए थे वो किए सॉल्व। हाँ हाँ बराबर है, ठीक है। सर अभी एमसीक्यू में बुक बैक न्यूमेरिकल्स भी इम्पोर्टेंट है ना? Yes, they can ask from that also. Back question में से भी पूछेंगे। This is your angle of incidence, ये 68. चालू है? चले जाते। चेक करते इसका। कहते कितनी रंग है? Now here this is 60 degree. Suppose ray of light is incident on this. ऐसे angle पे incident है। Like this. Go like this. आपका भी आए आएगा बाकी पास है नीचे। Sir, I joined now. So till where have you reached? I have finished with the ABC खत्म किया, 4th chapter। Okay, sir. Thank you. 60 तो ये कितना आएगा 30, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप करो तो ये कितना होगा 60 डिग्री। If this is 60, light get reflected back also with the same angle। ये रिफ्लेक्ट जाएगा मतलब कैसे होगा, this is also 60 degree, this is 90, right? It will go like this, ऐसे जाए, ठीक है? This is the one thing। This is one thing। अभी suppose say prism is given like this, this is say 90, 60, 30। Say ray of light is incident like this, one ray is incident like this, कितना, दूसरा ray is incident like this, will change of color, दूसरा is incident like this, ठीक है? In both the cases, suppose for this is the name is A, B and C, ठीक है? Complete the path होगा, और question is what is
angle of incidence. Angle of incidence for a blue and yet red. ठीक है, मरून को मैं रेड ले रहा, मैं रेड कर देता. Red, blue and red at AB, BC, AB not BC, AB and AC. Good. How will you do this part? You have to solve this, right? You have to solve this. कैसे solve करोगे? सर एसी पे 30 डिग्री आ रहा है मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस एट एसी. Yes. अभी चेक करो. Suppose मैं ये पहले रेड वाला कंप्लीट करूँ. This is the part. ठीक है? तो ये इंसिडेंट ऐसे हुआ. This is 90. This angle will be 60 degree. ये नॉर्मल ड्रॉप है तो ये होगा 30. लेस देन क्रिटिकल मतलब ऐसे होगा रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस AB पे कितना हो गया? इट इज 0. AC पे कितना हो गया? 30 डिग्री. किसके लिए? और रेड. अभी ब्लू के लिए कैसे होगा? ब्लू के लिए this is the original part. ऐसे ये 90 हुआ. This angle will be what? 60 degree. Again this angle will be 30. It will refract. So same रहेगा. It is for blue also. Angles remain the same. AC पे कितना रहेगा उसका? AC पे रहेगा 0 and AB पे रहेगा वो 30 degree. Right? That is the only difference between these two. ये वाला part. क्या हुआ इसमें? विनीता क्या भेजा तूने? सर वो मुझे ना टेस्ट में मिस ने दिया था स्कूल में, तो मुझे वो समझा नहीं, इसलिए मुझे वो एक्सप्लेन कर सकते हो आप प्रिज्म का? हाँ, सबसे पहले ये जो तूने क्वेश्चन डाला है, नंबर नहीं पता उसका, ये डायग्राम है. This is your incident ray. This angle is given in 30 degree. So angle of incidence will be 60 degree. बस normal के साथ है. This angle will be how much? It is 45 degree. This is your R. So A mu of M is equal to sin I upon sin R. Sin I मतलब कितना हो गया? It is sin 60 upon sin 45. Sin 60 मतलब root of 3 by 2 upon 1 by root 2. तो root of 3 upon root 2 ऐसा आएगा. 1.22 आएगा. ओके सर. 1.33 तो होगा ही नहीं ना, because that is for water. कौन सा कह रहा हूँ? क्या पूछा? लाइट enters P 1.77, Q 1.50, R. Angle of refraction will be maximum in. Maximum इसके लिए होगा जिसका refractive index कम. S हो गया. ये अपने इस बुक में भी आंसर क्वेश्चन है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, बेंड होते हैं ना लाइट, जब भी ऐसे इंसिडेंट होता है, एंड बेंड जब भी ज्यादा होता है मतलब रिफ्रैक्शन ज्यादा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कम, बट रिफ्रैक्शन कम रहेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मोर ना. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा रहेगा? जिसका रिफ्रैक्शन कम, राइट? तो दैट इज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस. तो आंसर रहेगा S 1.31. ये अपना ही क्वेश्चन है, अपने बुक में है वो. ओके सर, समझा. हाँ, ऊपर वाला तो राइट है ना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो ट्रायंगल वाला प्रिज्म. हाँ सर, वो समझा.
ओके, और कुछ है तुम लोग को लाइट में और लेंस वाले पार्ट में? लेंस वाले में ध्यान रखना कि focal length of lens 1 by f is equal to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2, right? Focal length is inversely proportional to mu, and focal length is directly proportional to r. कि if lens is immersed in water, focal length increases. Just coming in 2 minutes, huh? Just 2 minutes. Yes, sure. Focal length will increase. पहले हमने रिलेशन भी किया था. सर हाँ. सर जो चैप्टर 4 का डी पार्ट में प्रिज्म है ना, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है उसमें. क्या कंफ्यूजन? अदर डे मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना, तभी मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा है. वो प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डिविएशन है, अलग अलग टाइप के प्रिज्म्स दिए है ना. और बोर्ड पेपर में भी जो स्पेसिफिक पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था ना प्रिज्म रिलेटेड, वो भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था. TIR के कंडीशंस आते हैं. सॉरी सर. TIR के कंडीशंस आते हैं. What are the conditions for TIR, total internal reflection? Yes or no? दो कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन है source of light must be denser medium. Ray of light should go from denser to rarer, and your angle of incidence must be greater than IC. IC तुम्हारा है 42 डिग्री for glass air. अभी सपोज ये पाथ दी है, राइट? सपोज दिस इज द पाथ, दिस इज माय इंसिडेंट रे. ठीक है, इसको कंप्लीट कैसे करोगे तुम? सबसे पहले दिस विल गो अप. आज लेक्चर के लिए आ रही है ना तू विनीता? तो कितने बजे है? मैंने देखा नहीं वो मैसेज. रेगुलर टाइम पे. अच्छा, इस 7 o'clock में ऑफलाइन? हाँ. हाँ, मैं ऑनलाइन आऊंगी सर, ऑफलाइन तो पता नहीं अभी. क्यों ऑफलाइन? ऑफलाइन आ जाओ ना, पता चले कि तुम्हारे जो डाउट्स है वो सब निकल जाएंगी. एक लेक्चर अटेंड करो ना तुम. ओके सर, मैं फिर सब डाउट्स मार्क करके ऑफलाइन आऊंगी. ठीक है, हाँ, अगर पॉसिबल है. पॉसिबल है, आना ही है. दिस इज 60 डिग्री. अभी देखो, दिस Okay, इज sir. मोर देन क्रिटिकल होगा तो क्या होगा? दिस विल गो लाइक दिस. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा. अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री. अगर 30 है तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो.
This is a normal drawn, right? This is 90. With this angle will be how much? 60 degree. 60. ये तो ये 120 होगा. ये 120 है मतलब ये कितना होगा? 30. अगर ये 30 है तो लेस देन क्रिटिकल. The ray will go like this. It will bend away. Actually ऐसे नहीं होगा. It will bend away. More bending होगा. ऐसे. बराबर? Yes. This is one. दूसरा कौन सा है जिसमें प्रिज्म में ये इंसिडेंट ऐसे होता है, ये ऐसे होगा. This angle will be your 90 degree. This is 60 degree. This will be 30 degree. So the incident ray incident like this. बराबर? ये 90 degree ऐसे हुआ. It is going like this. तो ये कितना होगा? 30 degree. ये नॉर्मल है, ये 60 डिग्री होगा. So more than critical. It will go like this. ये भी कितना होगा? 60 डिग्री. अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30. बराबर? ये कितना होगा? 60. Yes. ये 60 है तो ये नॉर्मल डाउन करो. ये हो जाएगा 30. 30 मतलब लेस देन क्रिटिकल. It will refract. बराबर? Yes, sir. समझा सर, अभी क्लियर है. यही डायग्राम देखिए बहुत बार आएंगे. अभी नेक्स्ट इज सपोज ये वाला पार्ट. 1/4 पीस ऑफ अ ग्लास. कॉर्नर पीस लेते हैं ना ग्लास का, ऐसे. दिस इज योर इंसिडेंट रे. इसको ये एंगल दिया हुआ है 42. 90. सर पेपर में क्या चेंजेस है वो मुझे भेजो ना. हार्ड कॉपी सब प्रिंट हो गया, सब मुझे चेंजेस करना पड़ेगा. मैंने किधर हार्ड कॉपी? अब इसको कंप्लीट कैसे करोगे तुम? इसको कंप्लीट कैसे करोगे? सर इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 है. यस 40 है, 48 है. ये नॉर्मल है. एंगल विल बी 48. तो यहाँ से क्या होगा? TIR. बैठ जा 2 मिनट. Yes, TR. एक ही मिनट. This is 48. तो ये कितना होगा? 42 सर. सुनीता बराबर ये कितना होगा? 48. Yes, sir. 48 होगा 48. सर. फिर वो एकदम रेड लाइन के मतलब उसके ऊपर ही जाएगा. Yes, this is 42. And फिर क्रिटिकल जितना है एंगल, लाइट will go like this. Listen. It will go like this. ठीक है, ये तुम्हारा TR है. विनीता समझा अभी? हाँ सर. ठीक है. अभी और कुछ? नहीं सर, मुझे प्रिज्म्स में डाउट था. क्रिस तुझे कुछ है? कनिष्क, हेमिल? एक सेकंड सर देखो.
सर वो स्पेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब तो एक बार रिवाइज करा सकते हो? क्या 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 The sign convention. रेड ग्रीन सर वो ये ऑप्शन है विजिबल लाइट रेज गामा रेज इसमें डाउट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में माइनस हाँ, फोर क्या हुआ माइनस प्रॉब्लम क्या है हेमंत क्या प्रॉब्लम है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सर मतलब क्वेश्चन आता है ना कि विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं फ्रीक्वेंसी वो वाला तो आता है हाँ फिर देखो गामा रेज का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो पेनिट्रेटिंग पावर भी मैक्सिमम रहेगा एंड रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज्यादा है तो पेनिट्रेटिंग पावर कम रहेगा उसका बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी उसका कम फिर यूज में गामा यूवी रहेगा और तुम्हारे पास एन इंफ्रा रहेगा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रा एंड यूवी रहेगा बाकी सब इन बिटवीन भी पूछ सकते हैं सर वो लाइट यूनिट का वो पीडीएफ है ना वेबग्योर का हाँ उसमें 61st क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन बोलना मेरे पास अभी नहीं है क्वेश्चन नंबर 61 बोलना क्वेश्चन बोलना क्या है for a device to be able to make use of electromagnetic radiation it needs an ये थ्री पहले भेजा था लाइट है ना कौन सा पेज क्वेश्चन नंबर कौन सा 61 यहाँ पर प्रॉब्लम था सेक्शन बी का पोर्शन उसमें दिया है रिमोट कंट्रोलर ऑफ अ टेलीविजन यूजेस रीजन रिमोट कंट्रोल मतलब इंफ्रारेड होता है ना 3x² प्लस पर है ना उसका वेवलेंथ ज्यादा है ना सेक्शन सी में रेडियो पर है ना इंफ्रारेड यूज होता है ना देखिए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 वो तो बोला मैंने बराबर ना एमिल हाँ सर ये आ गए यू रीजन पूछा है ना एक्सप्रेशन फॉर x if रिमोट Time for- कंट्रोलर टेलीविजन एक मिनट return journey is this is 1 meter gamma rays infrared less ये PQRS एस मतलब विजिबल लाइट है ये तुम्हारा गामा रेज किस so this is your control of television uses radiation from the region remote controller उसमें कौन सा यूज होता है रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड होते हैं ना हाँ सर इंफ्रारेड तो यू में इंफ्रारेड नहीं आते सर इफ पॉसिबल आप 115 के पहले साइन कन्वेंशन एक बार करवा सकते हो क्योंकि फिर 130 को टेस्ट है ना और खाना भी खाना है कौन सा टेस्ट है बायो रीटेस्ट हमें तो आज लेक्चर के लिए आ रहे हैं ना हाँ सर 3:30 के टाइम पे मतलब हाँ ठीक है तभी करते हैं ओके सर और साइन कन्वेंशन में क्या है तो साइन कन्वेंशन में you have अब होगा हम वहां पर जाने वाले u is negative focal length is ये मौलिक सर को देने थे positive
V is positive मैं पासवर्ड में हो देगा for real, प्रिंटर का पेपर नीचे रख, negative इसका प्रिंटर for virtual. मेरा प्रिंटर का पेपर दिखा नया प्रिंट मारा हाँ वो पेपर का प्रिंट, This is for concave lens, U, V and F. ठीक है मैडम अब मैं सम ढूंढ रहा हूँ नहीं मैडम Always negative. It is always negative. ठीक है. सर हाँ. सर एक बार वो उन लोग के फुल फॉर्म मतलब जो क्या किसके लिए स्टैंड करता है वो भी एक बार बता दो। U is object distance. क्या क्रिश? V is image distance. And F is focal length. ठीक है. ओके और कुछ नहीं है ना तुम लोग को? नहीं सर। ठीक है. तुम लोग सर next- एक हाँ, क्वेश्चन में डाउट था हाँ, a बोलो. convex lens of power P is immersed in water how will its power change पानी में डाला मतलब तो फोकल लेंथ focal डिक्रीज length होगा बढ़ेगा. Focal length बढ़ेगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा. नहीं क्या 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 पूछा है? फोकल लेंथ विल इंक्रीज और पावर विल डिक्रीज. वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मतलब हाँ, inversely proportional because power and focal length they are inversely proportional. वही कंफर्म करा था हाँ, ओके सर बराबर ना. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं. नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू. ठीक है. चलो बाय बाय. हाय सर, थैंक यू सर। बाय सर थैंक यू सर